आज का दिन ऐतिहासिक दिन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण कर ली है। और जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के बाद उम्मीदों और आशा से भरा हुआ भाषण अमेरिका के लोगों को दिया, यह विश्वास दिलाया कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ अमेरिका को देंगे। और साथ ही जो परिस्थितियां पिछले कुछ वक्त में अमेरिका में बनी है, खासतौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका जिस तरीके से पिछड़ गया और नस्लीय भेदभाव जिस तरीके से हावी हुआ, उन दोनों चीजों से लड़ने में वो पूरी ताकत लगाएंगे। कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस बन गई हैं। भारतीय मूल की है कमला हैरिस। तमिलनाडु के गांव में भी जश्न मना उस वक्त जब कमला हैरिस आज शपथ ग्रहण कर रही थी। वो पहली महिला उपराष्ट्रपति ही नहीं, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं और पहली दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति भी हैं। तो पूरी दुनिया की नजर आज अमेरिका पर ये दो तस्वीरें आज लोकतंत्र की जीत के तौर पर प्रस्तुत की जा रही हैं। और शपथ ग्रहण के बाद जो बाइडेन ने जो बड़ी बातें कही, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year. और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौथाई वाले, भारतीय जनता पार्टी का
विदेश मामलों का प्रभार संभालते हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत साहब आ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रकाश शाह और देव करलेकर मौजूद हैं, दोनों अमेरिका से हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। विजय चौथाई वाले साहब, पहला कमेंट जो बाइडेन के भाषण को सुनने के बाद, और साथ ही जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कही है जो बाइडेन को बधाई देते हुए शपथ ग्रहण के समय। पहली प्रतिक्रिया विजय जी आपकी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? मैं भी जो बाइडेन जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और 46th प्रेसिडेंट बनने के लिए। एक बहुत कठिन परिस्थिति से आज अमेरिका गुजर रहा है और उनका जो स्पीच था वो उसके ऊपर एक हीलिंग टच जैसा साबित होगा और जो भी कटुता अमेरिका में पैदा हुई है पिछले 2 महीने में वो कम होगी। पूरी तरह से समाप्त होने की तो गुंजाइश रखना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम होगी और नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अमेरिका फिर से काम करना लगेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका जो अभिनंदन किया है वो यही दर्शाता है कि भारत अमेरिका संबंध दोनों पक्षों से बराबर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में उन्होंने कार्यभार संभाला तब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ओबामा, फिर ट्रंप आए और अभी फिर से डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए और हर ट्रांजिशन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में वृद्धि हुई है और संबंध और दृढ़ और मजबूत बने हैं और ये प्रक्रिया भी आगे चलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनिल जी जल्दी से आपका एक कमेंट जो बाइडेन की बातों पर। देखिए, जो बाइडेन जी ने सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको किस तरह फिर से यूनिफाई किया जाए, ये उनका खास वो रहा है। उन्होंने सारे अमेरिकन को एक साथ आने के लिए कहा है, तभी वो इस तरह की जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे रेसिज्म की वजह से हो या डोमेस्टिक टेररिज्म की वजह से है, उससे वो पार पा सकते हैं। और उन्होंने ये एक बात जैसे डिसेंसी और डिग्निटी के लिए कही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि अमेरिका तभी आगे लीड कर सकता है जब वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। एक बार अमेरिका ही चले चलते हैं, प्रकाश शाह और देव करलेकर दोनों हमारे साथ हैं। देव साहब, आप तारीफ कर रहे हैं जो बाइडेन के भाषण की और साथ ही तुलना कर रहे हैं इस बात से कि जिस तरीके से भारत का रुख रहता है वैसी ही बातें उन्होंने आज अपने भाषण में कही। आपने संस्कृत के कुछ हिस्से भी उद्धृत किए कुछ देर पहले मुझसे बातचीत में, लेकिन जो बाइडेन के भाषण में ज्यादा चिंता आप ही लोगों की थी जो समर्थक हैं डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा रोहित जी, इन जनरल इन अमेरिका लोग पार्टी से ऊपर होके नेशनलिस्ट होते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी 224 साल पुरानी जो हमारी डेमोक्रेसी है, तो देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस कीप कमिंग इन, हमें लोग और परिस्थितियां शायद गिरा भी दे, लेकिन हम फिर से उभरेंगे और अच्छे से उभर के आएंगे। तो ये कहना गलत होगा कि जो आज का मैसेज था उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप फॉलोअर्स के लिए कहा था। आज का उनका जो संदेश था यह नॉट ओनली अमेरिका बट इट वाज अ यूनिवर्सल मैसेज। पूरी दुनिया की 194 कंट्रीज आर वॉचिंग एट द अमेरिका। वी आर द ग्लोबल सुपर पावर और भारत मूल के जो हम अमेरिकन सिटीजन हैं, ये हमारा दायित्व होता है टू इंश्योर कि जो अमेरिका का प्रोग्रेस हो उसमें भारत का प्रोग्रेस भी हो। अंशु जी जो आपके पैनलिस्ट है वह भी यही चाहेंगे और जब भी वो अमेरिका आते हैं उनकी यही चेष्टा होती है कि यह संबंध और ज्यादा से ज्यादा वृद्धिंगत हो। प्रकाश शाह साहब अब बोलिए अपनी बात। सी बात यह है कि जिस समय बाइडेन साहब आ रहे हैं वो 3 वायरस का सामना कर रहे हैं, एक नहीं। सबसे पहला वायरस है झूठ का।
इसका सामना सत्यमेव जयते से होता है और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। हम 4 साल देखते आए कि झूठ का वायरस लंबा चला और वो झूठ का नाश होना ही चाहिए। जो सच बात है उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। जो सच बात है वो सच सच ही रहता है। झूठ तुम 25 बार 50 बार 100 बार रिपीट करते करते सच को डिफीट करने की कोशिश करो, ये अच्छा नहीं है और इसी से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरा वायरस है रेसिज्म का। ये भी आज की बात नहीं है, ये रेसिज्म है 400 सालों से है। अभी लिंकन ने जो किया, फिर भी तुमने देखा कि कैपिटल में जाके कॉन्फेडरेट फ्लैग्स, नाजी सिंबल्स, ये सब लेके लोगों ने जो तमाशा किया, ये सब का सामना करना होगा, ऐसे वैसे नहीं होगा। तीसरा वायरस अभी जो कोविड चल रहा है वो भी है। तो ये सब तीनों वायरस है और तीनों वायरस का सामना उसी मुकाबले से करना होगा और एक हम नहीं करेंगे तो हमारा कार्य नहीं हो जाएगा। बाइडेन जी यही कह रहे हैं, यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए। हमें रेड स्टेट्स ब्लू स्टेट्स नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरों की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देव साहब की बातों से ऐसा कहीं लगा नहीं अभी तक। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल सपोर्टर बाद में हैं, अमेरिकन नेशनलिस्ट पहले हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी बात से यह झलक आ रही है कि आने वाले दिन ट्रंप के लिए या ट्रंप के समर्थकों के लिए बहुत अच्छे होने वाले नहीं है। चीन से तो मैसेज आ गया, अभी खबर आ चुकी है कि चीन ने ट्रंप प्रशासन के 28 अधिकारियों पर सैंक्शंस लगा दिए, ये कहते हुए कि हमारी संप्रभुता पर इन्होंने हमला किया, हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की। क्या ऐसा ही अमेरिका में भी देखा जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा अमेरिका में नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप गए मगर उसके पीछे सारी रिपब्लिकन पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी के सब संसद है। सेनेट में तो 50-50% है डिवीजन, हाउस में भी डिवीजन जो है अभी उसमें डेमोक्रेटिक मेजोरिटी बहुत कम है। तो सबका साथ लेके ही चलना पड़ेगा। एक दूसरे की बात समझने, पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिसी की मैटर्स में एक दूसरों की बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जरूरी है मगर ये करना भी चाहिए। अगर हमारी पूरी मेजोरिटी भी होती तो भी हमें वो मेजोरिटी इस्तेमाल करके सामने साइड को डिफीट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी 5-4 होना चाहिए, 6-3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए। और यही बात बाइडेन जी कर रहे हैं कि हम एकता चाहते हैं, मगर एकता का महीना ये नहीं होता है कि हम झूठ को स्वीकार कर लें। एकता का महीना ये नहीं होता है कि हम रेसिज्म का स्वीकार कर लें। एकता का महीना ये नहीं होता है कि हम वायरस का स्वीकार कर लें। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो खबरें छप रही हैं दुनिया भर के अखबारों में कि अगले 24 घंटों के भीतर ही कई बड़े ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसमें ट्रंप के फैसलों को पलट दे जो बाइडेन, क्या यह सच नहीं है? क्या यह तैयारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई मामलों को लेकर जांच बैठ जाए? इसकी भी संभावना है। जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध जो भी मामला है उसमें बाइडेन जी नहीं इन्वॉल्व होंगे। जो कायदा कानून है वो अपना काम करेगा, इसी दौर से चलना चाहिए। मगर जो पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज दुनिया भर की मुश्किल है। अभी ये क्लाइमेट चेंज के लिए हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो हमको पेरिस अकॉर्ड में फिर से जाना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है और तो ये बाइडेन जी को करना ही होगा। तो इसमें ये नहीं है कि हम एकता नहीं चाहते हैं, ठीक, क्योंकि जो करना पॉलिसी डिफरेंसेस है, मगर ये वो पॉलिसी डिफरेंसेस में एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देव साहब आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद मैं विजय जी और त्रिगुणाथ साहब के पास आ रहा हूं। देव साहब बोलिए, उनकी बात पे आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। रोहित जी, इट्स वेरी कॉमन व्हेनेवर पार्टी चेंज गियर, जब अपोजिशन पार्टी आती है तो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस आर बीन
invoked in the interest of that particular political party, या फिर they will change the policy parties, because उनका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे पे वो इलेक्शन फाइट करते हैं. तो ये पेरिस अकॉर्ड विच वाज वन ऑफ द इलेक्शन आइटम्स ऑफ बाइडेन जी, और उन्होंने कहा था कि वी विल बी चेंजिंग इट. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दे विल बी डूइंग इट. कुछ ज्यादा मसला नहीं है. पेरिस अकॉर्ड वाज इन अ वे वी वर गेटिंग रफ्ड. हम ज्यादा पैसे दे रहे थे, हमको कम सुविधाएं मिल रही थी, तो ट्रम्प साहब का रुख थोड़ा ज्यादा हार्ड बॉल प्लेइंग था. बाइडेन साहब थोड़े नरमी से आएंगे. बाइडेन साहब इज इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर 48 इयर्स. ट्रम्प साहब इज नोन टू बी अ बिजनेसमैन, हायर एंड फायर की उनकी बुद्धि है. तो दोनों के अप्रोच शायद अलग होंगे, बट इफ यू वर टू सी द एंड रिजल्ट्स इज फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ दिस ग्रेट नेशन. आप देखिए, आपके या फिर हमारे मम्मी डैडी जो होते हैं, कोई किसका अप्रोच थोड़ा प्यार से होता है, और कोई बड़े हार्ड बॉल, और कभी एक चपाट भी आपको मार दे, बट दे आर लुकिंग फॉर द गुड एंड वेलनेस ऑफ द चाइल्ड. उसी अनुसार बाइडेन साहब हो, ट्रम्प साहब हो, देयर अप्रोच इज फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट. अमेरिका को जो सुपर पावर और जो दायित्व है दुनिया में, वह सुपर पावर और वह उनका जो सुप्रीमिटी कायम रखे, दोनों यही चाहेंगे. मैं फिर से कहता हूं, टाइम हैज कम. वी आर दिस ग्रेट नेशन सिटीजन फर्स्ट. तो जो पार्टी लाइंस है और जो व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करनी है, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बारी कहा था कि लोग तो आते जाते रहेंगे, ये देश रहना चाहिए. तो उसी अनुसार पीपल विल कम एंड गो, पीपल हैव देयर पर्सनालिटीज. खामियां तो हर चीज में है. हम भगवान में भी खामियां हमने ढूंढ ली है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे सीखे ना. हम हर इंसान से अच्छा ही सीखे. जो इंसान में गलतियां है, उससे हम वो उसे ना सीखे, उसका अनुचरण ना करे, लेकिन हर इंसान से जो अच्छाई है उसका हम आचरण में आने की कोशिश करें. दिस टाइम हैज कम. वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस ग्लोबल पेंडेमिक ऑफ कोविड-19. चाइना को हमें उनकी मुश्किलातें और बढ़ानी है, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और खड़ा रुक है, एंड दे विल कंटिन्यू डूइंग दैट. भारत के संदर्भ में जो बाइडेन का आना, कमला हैरिस का पहली महिला उपराष्ट्रपति बनना, पहली दक्षिण एशियाई, उस पर से भारतीय मूल की महिला होकर उपराष्ट्रपति बनना, और जो बाइडेन की टीम में 20 भारतीय मूल के लोगों का होना, और फिर जो बाइडेन के भाषण में लगातार उस डर की झलक दिखना जो कोरोना और नस्लवाद को लेकर अमेरिकियों के मन में इस वक्त है, उसको भारत कैसे देखेगा? 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी हैं ट्वीट करके. हमारे साथ विजय चौथाई वाले इस वक्त मौजूद हैं, जो बीजेपी के नेता हैं और विदेश मामलों का प्रभार वो संभालते हैं. विजय जी, दो बड़ी बातें. एक, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के भाषण में डर, चिंता, तनाव सब कुछ झलकता है, और दूसरी तरफ चीन, वो पूरी दुनिया का अविश्वास इस समय झेल रहा है. क्या यह भारत के लिए एक मौके के तौर पर देखा नहीं जा सकता? आपकी बात सच है. देखिए, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने वाले हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही यूएस सीनेट के सामने जो एक टेस्टिमनी दी उनके कंफर्मेशन पे, उन्होंने इस बात का बहुत विस्तार से जिक्र किया है, और उन्होंने यही कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध बायपार्टीसन सपोर्ट से हुए हैं, और ऐसे कई सारे मामलों पे हमारी एक मत है, और चाइना के खिलाफ अमेरिका जो भी सहकार्य करना भारत के लिए आवश्यक समझेगा वो करेगी. उन्होंने एक और कई मुद्दे भी उठाए, जैसे पर्यावरण का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जिसके साथ भारत के साथ हमारे अच्छे कोलैबोरेशन होना चाहिए. उन्होंने मोदी जी का जो क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी उनकी रुख है उसकी भी प्रशंसा की है. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जिसमें डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार, मोदी जी सरकार के बीच में अच्छे संबंध आने की पूरी संभावना है. मैं ये नहीं कहूँगा कि देयर विल बी 100% एग्रीमेंट ऑन एवरी इशू. कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी थे, कुछ आज भी रहेंगे, परंतु जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये डिसएग्रीमेंट्स का कुछ प्रभाव होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है.
कमला हैरिस जैसी व्यक्ति की जो भारत मूल की है वो आना भी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ऐसा मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए और भारत के लिए भी। और अभी आज के स्टेटमेंट में भी उन्होंने कमला हैरिस ने अपने माँ का बहुत गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। मैं ये मानता हूँ कि आज ऐसी परिस्थिति है कि भारत और अमेरिका ये दोनों मिलकर कई सारे बायलैटरल इश्यूज को नॉट ओनली रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो कई सारी चुनौती है उनको भी मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। उसमें एक हमारे जो नॉर्दर्न नेबर है उसका जो एक्सपांशनिज्म है जी, वो भी एक इश्यू है कि जिसके ऊपर सहमति होने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए, दुनिया की नजर रहेगी कि भारत अमेरिका के संबंधों में क्या जो बाइडेन का आना एक नए अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुणायत, देव करलेकर और प्रकाश शाह, आपका आज तक पर आने के लिए। लगातार कवरेज आप देख रहे थे वॉशिंगटन से 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण की है।